امام پہنچے، گھر پہنچنے کے بعد آپ نے گھر والوں سے کہا اب ہمیں مدینہ منورہ میں نہیں رہنا، تیاری کرو ہم مدینہ کو چھوڑ دیں۔ یہ اس منزل پر آنے کے بعد کیا مسلمان نوجوانوں کا کلیجہ منہ کو نہیں آتا کہ دین کتنا اہم ہے کہ امام علی مقام جس کا سب کچھ مدینہ منورہ میں ہے، حفاظت دین کے لیے جس مدینہ منورہ کو ایک نظر دیکھنے کے لیے ہر مسلمان دعا کرتا ہے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پہ رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے، کیا ہستی ہے امام حسین۔ اسی مدینہ منورہ کو جس میں آپ اب اللہ اکبر تقریباً 55 سال زندگی کے مدینہ طیبہ میں گزار دی، فرماتے ہمیں مدینہ منورہ میں نہیں رہنا، تیاری کرو۔ کون کون جائے گا؟ تو کہا محمد بن حنفیہ نہ جائیں گے، عبداللہ ابن جعفر نہ جائیں گے، بی بی سغرا نہ جائے گی، باقی سب چلنے کی تیاری۔ یہ چند لوگوں کے نام میں نے لے لیے۔ اس کے بعد امام نے کہہ دیا چلنے کی تیاری کرو، تو تیاری ہونے لگی۔ جیسے ہی مدینۃ الرسول میں سورج غروب ہوا، خاندان نبوت کے یہاں آنسوؤں کی برسات ہے، اونٹ تیار ہو رہے ہیں، کجاوے کسے جا رہے ہیں، بیبیوں کے لیے پردے کا انتظام ہو رہا ہے۔ جیسے جیسے شام اپنی سیاہ زلفوں کو مدینۃ الرسول کے افق پر دراز کرتی ہے اور شام کی جوانی رات کی سیاہ زلفوں کے بڑھاپے میں تبدیل ہونے لگتی ہے، اور پھر سب کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، مدینہ منورہ میں سناٹا چھا جاتا ہے۔ قدسیان فلک رات کے آخری حصے میں درودوں کے گجرے لے کر بارگاہ رسالت کی طرف نزول کرتے ہیں۔ ایسے میں جب سب کے دروازے بند تھے، اگر دروازے کھلے تھے تو ایک ہی خاندان کے، وہ خاندان نبوت کے دروازے تھے۔ کسی کے آنسو نہ تھمتے تھے، ہم مدینے سے چلے جائیں گے، ہم مدینے سے چلے جائیں گے۔ جو لوگ 10 دن کے لیے جاتے ہیں، 8 دن کے لیے جاتے ہیں، 1 مہینے کے لیے جاتے ہیں، جب جانے کا وقت قریب آتا ہے تو کہنے والے کہتے ہیں یا قافلتی زیدی اجلک رحمے بر حسرت تشنا لبک مرجیا را لرجے درک درک طیبہ سے ابھی نہ سنا جانا۔ اے میرے قافلے مدت کو بڑھا دے، مدت قیام کو، اور مجھے یہ نہ کہہ کہ مدینے سے جانا ہے، اس لیے کہ کیسے جاؤں، میرا دل تو مدینے سے جانے کی بات کو سن کر کے دھک دھک کر رہا۔ ہائے ہائے ہائے، 8 دن میں قیام کر کے جب آدمی اپنے بستر کو، اپنے سامان کو باندھتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ابھی روح نکل جائے۔ اس وقت تو بندے کچھ دعا بھی کرتے ہیں، مولا اس سے پہلے کہ یہاں سے ہم پرواز کریں فلائٹ کے اندر، ہماری روحیں پرواز کر جائیں۔ جو 8 دن قیام کرتے ہیں، 15 دن قیام کرتے ہیں، مہینہ بھر قیام کرتے ہیں، ان کا یہ حال ہے۔ اور پھر جن کا صرف مدینہ منورہ سے روحانی رشتہ ہے، ان کی تڑپ کا یہ حال ہے۔ جن کا مدینہ منورہ سے روحانی بھی رشتہ تھا، خونی بھی رشتہ تھا، وطنی بھی رشتہ تھا، ہائے ہائے سب کچھ تھا۔ امام حسین کا مدینہ طیبہ کے اندر، ماں کا مزار مدینے میں ہے، ماں جائے حسن مجتبیٰ کا مزار مدینہ منورہ میں ہے، اللہ اکبر، خالو عثمان غنی کا مزار مدینہ منورہ میں، نانا کا مزار مدینہ منورہ میں ہے، دادا حضرت امیر حمزہ کا مزار مدینہ منورہ میں ہے، دوسرے دادا حضرت عباس کا مزار مدینہ منورہ میں، سب کچھ مدینہ طیبہ میں، دادی فاطمہ بنت اسد کا مزار مدینہ منورہ میں، کیا کیا بتائیں مدینے میں کیا تھا، اللہ اکبر۔ لیکن رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، مگر اب ضمیر کا سودا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ حوصلہ دیکھو، ہمت دیکھو، امام اس پرعزم ہستی کا نام ہے۔ امام نے فرمایا سامان باندھو، سامان ادھر باندھا جا رہا ہے، تیاریاں ہو رہی ہے۔ ادھر امام علی مقام اب روضہ رسول پر جانے کی تیاری کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ کبھی بیویوں کو سنبھالا دیتے ہیں، کبھی بہنوں کو سہارا دیتے ہیں، کبھی بھتیجوں کو سہارا دیتے ہیں، اسے سنبھالیں کہ اسے سنبھالیں۔ کیا امتحان کا آغاز ہوا ہے۔ 4 شعبان المعظم کی شب ہے، یہی وہ شب ہے جس کی صبح کو امام علی مقام مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے تھے۔ حسن اتفاق دیکھو، 4 شعبان کو ولادت ہوئی ہے اور 4 شعبان کی شب ہی کو امام علی مقام ایک تاریخی روایت کے مطابق مدینہ منورہ سے ہمیشہ کے لیے کوچ کرنے والے ہیں۔ امتحان کا آغاز تو
देखें, कभी बीबियों को तसल्ली, कभी बहनों को तसल्ली। अल्लाह अकबर। महज चश्मे तसव्वुर से अगर हुजरे इमाम का हम तसव्वुर और ख्याल करें तो क्या हाल होगा। कभी बेटी सकीना को सीने लगा सुगरा की जिद का और उनकी हट पर सर पर हाथ फेर फेर कर कहते हैं, सुगरा तुम्हें यहीं रहना, इसलिए कि तुम बीमार हो, तुम्हारी बीमारी की वजह से हम तुम्हें यहीं छोड़ जाते हैं। इंशाअल्लाह जब सेहत होगी हमें खत लिखना, बहुत जल्द तुम्हारे भैया अली अकबर को भेजकर तुम्हें बुला लिया जाएगा। जहां भी होंगे इत्तला करते रहेंगे, खुतूत भेजते रहना, आगाज अपने हालात से जो वो वाकिफ कराते रहना। बीबी सैयदा उम्मे सलमा रसूलुल्लाह की ज़ौजा इमाम से कहती है, इमाम मदीना सुना हो जाएगा, मदीना रसूल में क्या रह जाएगा, तुम रसूलुल्लाह की गोया के नवासा होने के एतबार से आखिरी निशानी हो, न जाना हुसैन। इमाम सैयदा उम्मे सलमा से इमाम कहते हैं, नानी जान अम्मी जान मुझे जाना होगा, मेरी जिम्मेदारियां हैं। बिल आखिर इमाम इधर सारी तैयारियों से फारिग हो करके उधर जो है अल्लाह अकबर मज़ार रसूल की तरफ जाते हैं। माँ की बारगाह में हाज़िरी दी, भाई की बारगाह में हाज़िरी दी, दादा सैयदुश्शुहदा मेरे हमज़ा की बारगाह में हाज़िरी दी, और उसके बाद आखिर में मेरे इमाम नाना की बारगाह में हाज़िरी के लिए जाते हैं। महज चश्मे तसव्वुर से जब उस बारगाह आली जा का तसव्वुर करते हैं, क्या कैफियत हुई होगी। जब एक आशिक़े ज़ार आज अलविदाई हाज़िरी देता है तो उसकी कैफियत क्या होती है। मेरे इमाम की कैफियत का तसव्वुर करें। इमाम आली मकाम हाथ बांध कर दस्त बस्ता नाना के मज़ार पर खड़े हैं, कभी लिपट लिपट जाते हैं, पूरा वजूद जाने के तसव्वुर से थर थर कांप रहा है। इमाम आली मकाम के आंसू रुकते नहीं, आंसू आंसुओं से दाढ़ी शरीफ तर हो जाती है, मोटी मोटी आंखों से मोटे मोटे आंसू अल्लाह अकबर सावन भादों की तरह बहते हैं। और गोया तसव्वुर की आंखों से देखो तो यूं लगता है इमाम हुसैन ने दुरूद और सलाम की नजरें पेश करने के बाद अब नाना की बारगाह में यूं हाजिरी लगाई होगी, नाना जान अब आपका हुसैन आपकी बारगाह में आखिरी सलाम पेश करने के लिए आया है। ओ मेरे नाना, आप अपने हुसैन का आखिरी सलाम कबूल कर लें। नाना नाना की बारगाह में, या रसूल अल्लाह आपका मदीना आबाद रहे, जब तक चांद सूरज निकलते और डूबते रहेंगे आपकी बारगाह में हाजिरी देने वाले, दुरूद और सलाम पेश करने वाले आते रहेंगे। लेकिन अब इतना बड़ा महबूब आपकी बारगाह में कोई भी दुरूद और सलाम की नजरें लेकर ना आ सकेगा। नाना की बारगाह में अर्जी लगाई होगी, नाना जान जिस हुसैन को आपने अपने कंधों पर मदीने मुनव्वरा की गलियों में बिठा करके गश्त कराया था, जिसको जुल्फे थमाई थी, आज वो हुसैन हमेशा हमेशा के लिए मदीने से जाता है। नाना जान अब कभी मैं वापस लौट कर नहीं आऊंगा। मुझे यूं लगता है आपकी उम्मत ने देखे मेरा क्या हाल किया। नाना आपका हुसैन जाता है, जिम्मेदारियों का बार ले जाता है। मेरे नाना बस मेरे लिए इतनी दुआ कर दे कि जिस वक्त मैं जवान अली अकबर का लाशा उठाऊं तो उस वक्त मेरे पास सब्र मौजूद रहे, मैं इस्तिकामत का जबल शामिख बन करके उनके दरमियान खड़ा रहूं। नाना जान जिस वक्त कासिम की लाशों पर घोड़े दौड़े उस वक्त मेरे नाना मैं सब्र का पहाड़ बन करके डटा रहूं। नाना जान जिस वक्त मेरी लाश पे घोड़े दौड़े उस वक्त भी मैं रब की बारगाह में सजदा शुक्र अदा करता रहूं। मेरे नाना जब मेरी बीबियों के खेमे जलाए जाते रहे, बीबियों की चादरें छीनी जाती रहे, उन्हें भी सब्र के लिए दुआ फरमाए। न जाने क्या क्या अर्ज मारूज हुए होंगे। लिखने वालों ने लिखा, कहने वालों ने कहा ये अर्ज मारूज महज चश्मे तसव्वुर से किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि अर्ज मारूज के दरमियान मोटे मोटे आंसू कब्र रसूल पे निछावर होते हैं। और ऐसे में मेरे इमाम अभी सोते और जागते की कैफियत में थे, ये कहते हुए कि नाना मेरी रूह जिस्म से निकल क्यों नहीं जाती। या रसूल अल्लाह मैं मदीना छोड़ना नहीं चाहता या रसूल अल्लाह, लेकिन लोगों ने मुझे इतना मजबूर कर दिया है कि मैंने मदीना छोड़ देना है। या रसूल अल्लाह मेरे हाल पे रहम फरमाए। ऐसे में सोते और जागते की दरमियानी कैफियत में थे मेरे मौला हुसैन। ख्वाब में क्या देखा कि मेरे आका तशरीफ लाए, सीने से लगाया और फरमाया हुसैन
मदीने से जा रहे हो, और ये कह करके अपने सीने से चिमटा लिया। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मेरे इमाम ने देखा, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की जुल्फें बिखरी हुई है, आकाए करीम की आंखों में आंसू है, सरकार सीने से चिमटाते हैं और कहते हैं हुसैन तुम्हें बहुत दुख उठाना है, तुम्हें बहुत तकलीफों का सामना करना है। असकी नाना जान जमीन फट जाए, आपके बाजू में जमीन में समा जाऊं। फरमाया नहीं, आपके मुकद्दर में जो शहादत लिखी है उस शहादत का शरफ तुमको पाना है। हुसैन तुम्हें करबला जाना है, जाओ अपनी जिम्मेदारी पूरी करो। फिर बहुत सी बातें की गई, इमाम की आंख खुली शौक शहादत में। अल्लाह अकबर। शौक कहता है रुकिए, जिम्मेदारियां कहती है चलिए। अल्लाह अकबर। इमाम आली मकाम अला जद्दी वाली सलाम पलटे, कब्र रसूल से, मज़ार रसूल से 2 कदम आगे बढ़े, फिर वापस आए, एक बार फिर देखे, फिर पलटे, 4 कदम चलने के बाद फिर पलट कर आए, एक बार नाना का मज़ार फिर देखे। पलटते हैं, आते हैं, जाते हैं, आते हैं। एहसास होता है हुसैन सुबह होने से पहले पहले मदीने मुनव्वरा की हदों से बाहर भी जाना है। मेरे इमाम आखिरकार निकले। अल्लाह अकबर। एक कुश्ता इश्क रसूल ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी। मेहराबों ने झुक करके सलामी दी, मेहराबों ने झुक करके सलामी दी, और मीनारों ने खड़े होकर के ताजीम दी। और करबला का मुसाफिर मस्जिद नबवी से यूं निकला कि मस्जिद की दरो दीवार गर्दन उठा उठा कर सैयदा के लाल को आखिरी मर्तबा देख रहे थे। इमाम घर पहुंचे, घर में कोहराम मचा था, क़यामत सुगरा कायम थी। अल्लाह अकबर। इसलिए कि उस क़यामत सुगरा को क़यामत सुगरा इसलिए कह रहा हूं कि सैयदा फातिमा सुगरा का रोना नहीं देखा जाता था। अहले तसव्वुर, अहले कश्फ सिर्फ तसव्वुरात की आंखों से देखने वाले कहते हैं। सैयदा सुगरा कहती होगी बाबा मुझे ले चलो, मैं बीमार हूं तो क्या हुआ, सवारी पर जगह ना हो तो पैदल चल लूंगी, और बीमारी की बात है तो मैं बीमार भी नहीं। देखो अल्लाह अकबर। 1000 बीमारियों के बाद सैयदा सुगरा ने कहा बाबा मैं चल सकती हूँ, मुझे सेहत है, मैं तंदुरुस्त हूँ। बिस्तर पे पड़ी हुई सुगरा ने पूरी ताकत को समेटा, खड़े होने की कोशिश की, और जैसे ही खड़े होकर के बताया बाबा मैं चल भी सकती हूँ, दौड़ भी सकती हूँ, खड़ी भी हो सकती हूँ, ये देखो मैं खड़ी होती हूँ। पूरी ताकत को सैयदा सुगरा ने इकट्ठा किया और उसके बाद खड़े होने की कोशिश की। बीमारी से सैयदा की शहजादी ने जंग करना चाहा, बीमारी जालिम हार जीत गई। सैयदा की शहजादी बीमारी के सामने जमीन पर आ गई। आका ने सहारा दिया, बेटी को सीने से लगाया, मेरी लाल मैं आपको जरूर बुलाऊंगा, इत्तला करना, हाँ सेहत की इत्तला देना। बिलाखिर असगर का झूला तैयार है जाने के लिए। नन्ना साली असगर 1 महीने के कई कमो बेश जिसकी उम्र है, नन्नी नन्नी पिसलियों वाला वो शहजादा उठा लिया गया और सैयदा सुगरा ने प्यार किया। लेकिन प्यार करते करते भी जिस्म को दूर रखा कि मेरा बुखार मेरे असगर को न छू जाए। बहुत जल्द सेहत के बाद मुलाकात करेंगे। अहले तसव्वुर इस तसव्वुर को कहाँ तक बांधे। बिलाखिर अल्लाह अकबर। ऊंटों पर सामान लाद दिया गया और करबला का वो चंद रुकनी काफिला सवारियों पे बैठा और रात के आखिरी पहर में जो सब कुछ मदीने का था, मदीने मुनव्वरा में जिसका सब कुछ था, आज वो बेकसी और बेबसी के आलम में मदीने को छोड़ रहा था। वो जाने वाला काफिला पलट पलट कर कभी मस्जिद नबवी को देखता या यूं लगता कि मस्जिद नबवी के दरो दीवार उचक उचक करके उसको देखते और सलामी देते। इस
इसी हालत में कभी वो पलटते, कभी ये देखते, कभी वो पलटते, कभी ये देखते। अचानक ऊंटों के और घोड़ों के पैरों से इतनी गर्द उठी कि वो चंद रुकनी काफिला उस गर्द के अंदर छुप गया, और छुपने के बाद इससे पहले कि सुबह काजिब सुबह सादिक में तब्दील होती, करबला का ये चंद रुकनी काफिला सूबे हरम रवाना हो गया, हरम रसूल से हरम खुदा की तरफ रवाना हो गया। और उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए इमाम आली मकाम ने मदीना छोड़ दिया। मैं इमाम के दिल पे क्या गुजरी वो तो मेरा इमाम जाने, लेकिन बस हम तो सिर्फ तसव्वुर ही कर सकते हैं। अब्दुल्ला इब्ने मुती से मुलाकात हुई रस्ते में। इमाम कहाँ का इरादा है? फिलहाल मक्के का इरादा है। इमाम आली मकाम अला जद्दी वाली सलाम से कहा मक्का ही रहिएगा, कहीं जाइएगा मत। बिल आखिर मेरे इमाम आली मकाम अला जद्दी वाले सलाम चंद दिनों के अंदर मक्कतुल मुकर्रमा पहुंचे। जब आका मदीने शरीफ पहुंचे थे तो मक्कतुल मुकर्रमा सूना हुआ, मदीने में धूमें मची थी। लेकिन आज का दिन है, मदीना सूना कर गए करबला वाले, और मक्के में धूमें मची है। हुसैन इब्ने अली तशरीफ लाते हैं, हुसैन इब्ने अली तशरीफ लाते हैं। बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया। एक तारीखी रिवायत के मुताबिक इमाम अली मकाम ने वहां पर क़याम फरमाया जहां बनु हाशिम के मकानात थे। अभी भी बनु हाशिम के मकानात वहां मौजूद थे। इमाम ने क़याम फरमाया, मक्के में धूमें मची, इमाम आ गए, इमाम आ गए, नवासे रसूल आ गए। फिर हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास वहां पहुंचे हुए थे, इब्ने जुबैर वहां मौजूद थे, इब्ने उमर मौजूद थे। सब ने कहा इमाम यहीं रहिए, यहां से आप न जाइए।